Good evening, guys. Is the audio video clear? Okay, let's see. Bhavna, Dheeraj, Jasleen, Ishika. Okay, guys, please unmute yourself. Bhavna, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं. Hello, guys, audio video clear? Hello. Bhavna, I have unmuted you. Hello. Anybody else? Guys, I have unmuted 5 to 6 students here. So please बताओ किसी का कोई डाउट है तो. Hello. छह I can hear you. I can hear you. 5-5 6 स्टूडेंट ही एक टाइम पे अनम्यूट करूंगा ताकि वो एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाए. हाँ, who's this? Sir, Bhavna. हाँ भावना बताओ. Sir, my question is regarding Max Weber. Sir, how do we critically examine his social stratification theory? Because functionalists they criticize the Marxist and Marxists criticize the functionalist, but a concrete critique of Max Weber is not there. अच्छा, पक्का नहीं है. क्लास में नहीं किया हमने. नहीं क्लास में नहीं किया क्रिटिकल पक्का. कोई बात नहीं, चलो ठीक. अच्छा नहीं किया मतलब सीधा सीधा सर ने नहीं किया है. ठीक है. मैक्स वेबर का स्ट्रैटिफिकेशन, ऑब्वियसली स्ट्रैटिफिकेशन की थियरी आपको क्रिटिकली एग्जामिन करनी है. मैक्स वेबर की स्ट्रैटिफिकेशन थियरी का एसेंस क्या है जल्दी से. Sir, there are 3 dimensions. No. वो बाद में देखेंगे. Exactly what he says, Max Weber. So he says stratification exists. He was in fact emphasized on interpretation of stratification. He emphasized on dimensions of stratifications, right? Yes, sir. And those dimensions are class, status, party, right? Status, party. क्रिटिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या देखने को मिलता है. और थोड़ा सा और अंदर चलते हैं. स्टेटस रिप्लेस कर देगा क्लास को, राइट? याद है मैंने आपको ये भी क्लास में बोला था, पकड़े गए आप. ये भी क्लास में आपको बोला था कि पहली दफा मैक्स वेबर एग्जैक्टनेस पे फोकस कर रहे हैं और उसको बैलेंटली क्रिटिसाइज किया गया. डू यू रिमेंबर? हेलो. नो सर. अच्छा. नो सर. अच्छा, मैंने आपको कभी ये क्लास में बताया था कि कैसे मैक्स वेबर स्टेटस में जब आते हैं तो बोलते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन मॉडर्न सोसाइटी स्टेटस क्लास वुड बी रिप्लेस्ड बाय स्टेटस, राइट? यस सर. यस सर. हुआ क्या? अरे अच्छा, पार्टी दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं समाज में. नहीं वो, अरे यार जो बंदा डिस्कस ही नहीं कर रहा उस पे थोड़ी ना क्रिटिसाइज कर देंगे हम. रियलिटी में क्या हो रहा है? वेबर बोलते हैं मॉडर्न सोसाइटी में स्टेटस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगी. क्लास खत्म नहीं क्यों हो जाएगी? उन्होंने रीजन बताया, प्रोलिफरेट कर जाएगी क्लास, तो क्लास कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी, तो क्लास का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा. वेबर्स थियरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन के 2 इंपॉर्टेंट क्रिटिक जो सामने आते हैं वो ये. Weber never discusses what is the role of stratification, or does he discuss? Bhavna. Sir, role of stratification, no sir, only dimensions. तो पहला क्रिटिक कहाँ है? We can never understand what exactly or how exactly the stratification operates in society. At the best, the Weberian theory can help us only in understanding the dimensions of stratifications. Clear? Yes sir. Second, further in the details of the stratificational approach adopted by Weber, he highlighted there are 3 broad dimensions of stratifications, and out of which he opined that over a period of time in modern society, the status would become more important as a basis of stratification, replacing the class. In contemporary time, the status may have become more important, but the prediction made by Max Weber as far as the replacement of class does not exist, as class and status both coexist, and many times the class have super empowered over the status based dimensions of stratification. Clear? Yes sir. आगे चलते हैं और आगे चलते हैं. मैक्स वेबर क्लास के अंदर बोलते हैं अपवर्ड मोबिलिटी होगी, प्रोलिफरेशन होगी, जहां पे पेटी बुर्जुआस व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज के अंदर जुड़ जाएंगे. आज क्या देखा जा रहा है? बिसाइड द अपवर्ड मोबिलिटी फेस्ड बाय फ्यू, द डाउनवर्ड मोबिलिटी हैज बिकम ए सोशल फैक्ट ऑफ द majority of modern society, right? As Westergaard and Ressler advocated that on an average the salaries of the working class have not drastically increased in Britain. ये भी कवर किया मैंने.
मिले Yes, sir. क्रिटिक अब आपको? यस सर। गॉट इट? और कोई डाउट? सर हाँ, आपने क्लास एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन जो बताया था, अच्छा। सर उसको लेके भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि उसमें क्लास एग्जिस्ट करती है, और कुछ लोग कहते हैं क्लास नहीं, ये वेबर का नहीं क्रिटिक नहीं करती। होता है ना भावना, बिकॉज वेबर तो नहीं बोल रहे हैं क्लास नहीं है, वेबर बोलता है स्टेटस रिप्लेस कर देगा। अब ये वेबर के अंदर नहीं होता है, क्लास वाले में होता है। आई विल नॉट सजेस्ट राइट एनी क्रिटिक जो वेबर की थियरी से बाहर आ रहा है। मैंने तीनों क्रिटिक वेबर के ही क्रिटिक दिए हैं, ओवरऑल नहीं दिया क्लास का या स्टेटस का। गॉट इट सर। गॉट इट? अब समझ में आ गया? ओके, यस परफेक्ट। सर। नेक्स्ट गाइस, सर हाँ। सर देयर इज वन कंसर्न सर। देयर इज वन कंसर्न। सर द ओके, जूम सेशंस। हेलो 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 हेलो। सर उसका कोई लिंक नहीं मिल रहा है। अरे जूम सेशन मैंने बहुत टाइम से की ही नहीं है रिसेंटली, तो इसीलिए आपको लिंक नहीं मिल रहा है। जो लिंक आएगा स्टडी आईक्यू वाले प्लेटफॉर्म पे मैं सेंड करूंगा, बिकॉज हो ये रहा है काफी टाइम से पेपर भी करेक्ट नहीं किया। उसका एक रीजन था कि मैं सोच रहा हूँ कि अब डेली डाउट सेशन जब ले रहा हूँ तो इधर ही पेपर करेक्ट हो जाता है। मेनी ऑफ द पीपल हु राइट देयर आंसर्स आई इवैल्यूएट इट हियर इटसेल्फ लाइव, सो दैट्स द रीजन आई डिड नॉट टेक। तो अब इनिशियली अब रेगुलरली डाउट सेशन होगा, और उसके बाद जूम सेशंस अगर हो रही है तो यू विल गेट द लिंक इन ऑफिशियल स्टडी आईक्यू चैनल। ओके सर। ठीक है। Got it. भावना भावना भावना, 1 सेकेंड। यस सर। हैव यू बीन माय ऑफलाइन स्टूडेंट? यस सर। राइट, ओके, मैं वही कंफ्यूज हो रहा था, मुझे लगा सुना सुना सा आवाज है। ऑफलाइन इन द सेंस उस टाइम भी शायद आपने ऑनलाइन की थी, बट दैट वाज अ लॉन्ग बैक आई बिलीव, राइट? यस सर। Right, सर लास्ट ईयर आई टुक इट। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है भावना, क्लियर? यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट गाइस, ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। हु इज दिस? सर इशिका। इशिका, बताओ। सर एक क्वेश्चन था रिलीजन वाले चैप्टर से, मतलब मुझे आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उसमें लिखूं क्या? सर वो क्वेश्चन था, आर ऑल वर्ल्ड रिलीजन पैट्रियार्कल? सब्सटेंशिएट योर आंसर विद एग्जांपल। एक सेकेंड। आर ऑल वर्ल्ड रिलीजन्स पैट्रियार्कल? पेट्रियार्कल 2017-18 के आसपास का क्वेश्चन है क्या शायद ये? सर 2019 का है। 19, अच्छा ठीक है। और वर्ल्ड ऑल वर्ल्ड रिलीजन ऑब्वियसली आर Yes, sir. पेट्रियार्कल, और इसको आपको सब्सटैंशिएट करना है एग्जांपल के साथ। यस सर। ऑब्वियसली। सब्सटैंशिएशन वुड ऑलवेज, ये याद रखना एवरीबडी, जहां पे सब्सटैंशिएशन आ जाए वहां पे एग्जांपल आता ही आता है, जहां पे एल्यूसिडेट आता है वहां पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन आती है। एग्जांपल लिख दो तो बढ़िया ही बात है, खराब नहीं। सब्सटैंशिएशन हमेशा एग्जांपल से होता है, केस स्टडी से होता है, चीजों से। हाँ, तो अभी दिक्कत क्या आ रही है इस आंसर में? सर अब हम अगर हम 1 by 1 रिलीजन को लेके चलेंगे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसमें पैट्रियार्कल हम किस इशू पे लेके चले। तो पेट्रियार्कल, पहली चीज, इश्यू का मतलब ये है वुमेन जो है सबऑर्डिनेटेड है, मेन जो है एम्पावर्ड। ये मीनिंग सेम ही है, पेट्रियार्की का चेंज नहीं होगा। अब आपको ये दिखाना है आर, ऑब्वियसली आप स्टैंड अदरवाइज भी ले सकते हो। अगर पहले देखें कि आर ऑल वर्ल्ड रिलीजन्स पेट्रियार्कल, इसका मतलब जो रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन है उनमें क्या कुछ ऐसी वैल्यू सिस्टम्स है जो वुमेन को सबऑर्डिनेट कर रही है और मेन को एम्पावर कर रही है? डू यू रिकॉल? और ऑब्वियसली यहां पे एक रिलीजन सफिशिएंट नहीं होगी, थोड़ा सा मल्टीपल रिलीजन देना पड़ेगा टू ऑल वर्ल्ड रिलीजन है। अब इनिशियल इंट्रोडक्शन में आप स्टार्ट करो कि हाउ रिलीजन हैज बीन कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म टू मेंटेन द स्टेटस को इन द सोसाइटी. The religion largely propagates certain values which regulates the day-to-day affairs and has and as hence have remained an important social controlling mechanism present in the society, elaborated in the writings of Talcott Parsons, Emile Durkheim and others. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आउट ऑफ बॉक्स का लिखा है यहाँ पे, डायरेक्टली नॉट हिटिंग द क्वेश्चन, बट ये लिखना जरूर। वंस यू हैव रिटन के रोल क्या था रिलीजन का, सोशल कंट्रोल। अब इस सोशल कंट्रोल के लिए कुछ वैल्यूज पैदा की गई और उस वैल्यूज के थ्रू हम कई बार देखते हैं कि वुमेन सबऑर्डिनेट हो जाता है। अब एक लाइन लिखना, ऑल्दो द स्टडी ऑफ एंटायर वर्ल्ड रिलीजन कैन नॉट बी मेड हियर, बट हाउएवर द नेचर ऑफ पेट्रियार्की प्रेजेंट द नेचर ऑफ पेट्रियार्की इन्फ्लुएंसिंग द रिलीजन कैन बी सीन बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स। पहला रिलीजन ले लेते हैं हिंदुइज्म। क्या हिंदुइज्म के अंदर कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बताता है कि रिलीजन पेट्रियार्कल है, जहां पे वुमेन को सबऑर्डिनेट रखा जा रहा है? जल्दी से बताओ इशिका।
अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग आज? हाँ सर, सर एम आई ऑडिबल? हाँ, यू आर ऑडिबल। जल्दी से बताओ, हिंदुइज्म में कोई ऐसा एक एग्जांपल जहां पे आपको पता चलता है कि वुमेन जो है सबऑर्डिनेटेड है? सर मैरिज के रिलेशन में हम देख सकते हैं कि जो परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज ले लो, विडो रीमैरिज ले लो, या XYZ, राइट? कि बहुत सारी ऐसी prominent values है within the Hinduism which often see that the women are largely considered as the secondary sex. For example, the practices such as one can achieve salvation by having only son indicates the patriarchal mindsets where the girl is more considered as liability than the boys who are considered as asset. पहला point clear? Yes, sir. क्या जैनिज्म के अंदर पेट्रियार्की दिखाई दे रही है? सर ध्यान से सुनते जाना है, गजब आंसर है, मतलब मार्क्स ही मार्क्स है आपके पास। जैनिज्म के अंदर वीसी जो दिगंबर जैन्स होते हैं, दिगंबर जैन्स डू नॉट हैव वुमेन सेंट्स बिकॉज इट ओपाइंस, याद रखना ये पॉइंट, इट ओपाइंस दैट द वुमेन्स कैन नॉट अचीव सैल्वेशन। ये उनका मानना है कि वुमेन्स को सैल्वेशन नहीं मिल सकती, इसलिए वुमेन्स को सेंट नहीं बनाया जाता। क्लियर? यस सर। क्या बुद्धिज्म के अंदर पेट्रियार्की है? बुद्धिज्म के ऊपर अगर और डिटेल जाननी है, मैं एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। स्टडी IQ के अंदर मेरी प्लेलिस्ट पे जाना, बुद्धिज्म और पेट्रियार्की मैंने कम से कम 45 मिनट के वीडियो में डिस्कस की है कि क्या क्या लेख है, स्क्रिप्चर्स है, सेइंग्स है। फॉर एग्जाम्पल यहां तक अगर हम देखें तो क्या बुद्धिज्म के अंदर पेट्रियार्कल वैल्यूज दिखाई दे रही है? एनी वन एग्जांपल व्हिच यू कैन रिकॉल? सर बुद्धिज्म में अरे घबराना नहीं होता है, कुछ आंसर शॉकर्स होते हैं, आपके एक्सपीरियंस पे लिखने पड़ेंगे, हर चीज नहीं पढ़ सकते हो आप इस दुनिया की। Example, in the initial phase when the Buddhism was inaugurated or Buddhism was formed, the women were not allowed as a member. But in contemporary time, women's membership is present in in Buddhist sanghs and monasteries. But yet we often see in the various Buddhist scriptures, it is often written that one should largely, it is written that the women are the cause behind the lack of salvation of men. यहाँ तक लिखा हुआ है कि वुमेन्स कॉज है कि आप सैल्वेशन कभी नहीं ले सकते हो, इमेंसिपेट कभी नहीं हो पाओगे जब तक वुमेन से कनेक्ट रहोगे। एक स्टोरी ऐसे रन करती है कि एक बुद्ध नहीं, वहां तक नहीं जाएंगे, कि बुद्धा का एक पर्टिकुलर स्टूडेंट था कि किस तरीके से वो वापस फैमिली में गया, तो फैमिली में उनके माँ बाप ने बोला कि एक बेटा तो हमें दे के चले जा, एंड एज अ रिजल्ट ही स्लेप्ट विथ हिज ओन वाइफ, और जब वापस आया बुद्धा के पास में तो उसे नकार दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये इतना बड़ा स्टोरी तो नहीं लिख सकते, बट अगर ये वीडियो डिटेल में देखना, देयर इज वन वीडियो प्रेजेंट इन द प्लेलिस्ट। इससे आगे चलते हैं, इस्लाम के अंदर कोई पेट्रियार्की दिखाई दे रही है? सर पॉलीगमस मैरिजेस, ट्रिपल तलाक इंडिया में बैन हुए हैं, वर्ल्ड में तो नहीं हुए हैं ना। ट्रिपल तलाक वाज इनइक्वल टू वुमेन्स, जहां पे वुमेन्स डिड नॉट हैव दिस एस्पेक्ट ऑफ लार्जली गोइंग फॉर अ ट्रिपल तलाक कॉन्सेप्ट, राइट? यस सर। क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या आपको पेट्रियार्की दिखाई दे रही है? हाँ सर, अगर मेरे को जहाँ तक आपने बताया था कि सर वहाँ पे ट्रिनिटी होता है कुछ, तो उसमें फादर गॉड एंड होली स्पिरिट होता है। परफेक्ट। इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि एंथनी गिडन्स ने एक लाइन बताई है बाइबल से, वेयर द वुमेन्स वर मेड आउट ऑफ द रिब्स टेकन आउट फ्रॉम मेन, indicating that yes, women are largely considered as lower sex. अब इस तरीके से आप अगर कोई और लोकल आपकी रिलीजन है उसको भी लेना चाहो, यू कैन गो, बट लिमिट रखना 3 या 4 रिलीजन मेजरली इवैल्यूएट करना एंड शो दैट कि हर रिलीजन के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी वैल्यू है जो वुमेन को सबऑर्डिनेट कर रही है। अब आते हैं इसके कंक्लूजन के ऊपर। तो हमने अभी तक क्वेश्चन में प्रूव कर दिया, यस वी डू अंडरस्टैंड दैट ऑल द मेजर वर्ल्ड रिलीजन समहाउ आर biased towards women in comparison towards men, but however religion का inner core जो है वो आज लागू नहीं होता। रिलीजन का आउटर प्रिस्क्रिप्शन जो है वो ज्यादातर हम रिचुअल्स के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। हिंदुइज्म में लिख सकते हो बहुत सारे वैदिक रिचुअल्स के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो वुमेन्स, तो क्या कंक्लूजन में क्या लिखूंगा? However, it needs to be understood that the inner core of the religion still remains a sanctum sanctorium, free from any biasness, as it more dwells upon the relationship between this world and otherworldly beliefs. But it is somehow the practices present within religions which are looking more patriarchal than the religion looking
a patriarchal aspect. अब ये लिख दिया, एक स्कॉलर दे देता हूं साथ में. याद है रोसाल्डो मैंने बताया था, रिलीजन इज मोर ए डिसेप्टिव इंस्ट्रूमेंट देन बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन. क्यों नहीं याद आती ये चीज आपको यहां पे? अब मिला आंसर आपको? यस सर, बहुत क्लियर हो गया. थैंक यू. चलो ओके ठीक है. नेक्स्ट. हेलो सर. हेलो धीरज है सर. धीरज बताओ. सर एक क्वेश्चन है, बताओ. जस्ट डिस्कस करना. डिस्कस कंटेम्परेरी चेंजेस इन फैमिली. ये भी कोई क्वेश्चन है क्या यार? अब ये भी तुम्हें डिस्कस करना पड़ेगा. डिस्कस मतलब डिस्कस मतलब सर लिखा है. एक मिनट. डिस्कस कॉन्टेम्पररी चेंजेस है क्या? यस सर. पहले तो बताओ कंटेंट सफिशिएंट है तुम्हारे पास लिखने के लिए? बिकॉज बहुत डिटेल में किया हमने ये. यस सर. बताओ. 250 वर्ड्स में लिखा है. ठीक है. फैमिली इज द फंक्शनल प्रीरिक्विजिट ऑफ एवरी सोसाइटी. अच्छा आंसर रीड कर रहे हो आप? यस सर. ठीक है बताओ. In general terms, family refers to which includes adults of both sexes and at least two of them have sexual relationship. According to J.P. Murdoch, family performs some functions such as common residence, economic cooperation and reproduction. नहीं हटा दो ये. Okay, sir. क्यों हटा दो? रीजन पूछो. क्योंकि why, sir? यही एक चेंज लिखना है जो फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो. पहले फैमिली क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रही थी, आज क्या चेंज है. ये चेंज वाला पार्ट इंट्रो में मत लिखो. Okay, sir. ठीक है आगे. रॉन्ग नहीं है, प्लेसमेंट रॉन्ग है बस. Yes. Changes in family can be seen as first on basis of size. In traditional times, family were majorly based on birth and marriage. Perfect. Number of members of family were large. Example, joint family system. In the contemporary times, families are based on many factors such as emotions, feelings, which may not have many members as compared to traditional times. ओके. न्यूक्लियर फैमिली लिखना चाहिए था ना साथ में इधर. चेंज तो बताओ क्या हुई. हाँ, yes sir. आगे. On basis of breakdown, for G.S. Gure, family is a sacred institution where breakdown of family considered as minimalistic. In the recent time, with the rise of nuclear families, Edmund Leach advocates that nuclear families are prone to short circuit, which results into frequent breakdown of families. ठीक है. अब अगर इधर न्यूक्लियर फैमिली लिखा है तो साइज में आप लिखोगे सिंगल पैरेंट फैमिली. Okay. रिपीट नहीं करेंगे हम. ठीक है आगे. On basis of interactions, before modern times, interactions in family based on affinity. In current scenario, according to William Goode, interactions are based on role bargaining, which refers to members of family keep relations to those kids and kins who they think who may help them in future. परफेक्ट. Fourth is on basis of status. Earlier, status in families based on age factor. Today, status in families determined by merit, contacts or contributions. परफेक्ट. Fifth is on basis of एक सेकंड इधर एग्जांपल लिखो. एग्जांपल स्टेटस ऑफ वुमेन इन फैमिली टुडे इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हर एक्सपर्टीज. Okay. आगे. On basis of type, in the traditional times, family was majorly constituted of heterogeneous humans. In the present time, homogeneous families also exist. Example, same-sex families. ओके. होमोजीनियस नहीं यार, एक सेकंड, ये वर्ड उल्टा हो जाएगा इधर. होमोजीनियस होता है एक सिमिलैरिटी, वो इधर होमोजीनियस नहीं लगेगा. मतलब इन अर्लियर टाइम द फैमिली वर ऑलवेज कंसिस्टिंग ऑफ टू ऑपोजिट सेक्स. टुडे वी ऑफन सी दैट द फैमिलीज ऑफन आर मेड अप ऑफ सेम सेक्स कपल्स एज वेल. होमोजीनियस हटा देना, वो रॉन्ग है उधर. ठीक है. Okay. हाँ. And the conclusion लिखा है, the nature of change in families was earlier quantitative in nature, clearly seen in size, structure. Fabulous. But in contemporary times, nature of change is qualitative, can be seen in status, functions, ideologies, value systems, etc. सुपर्ब. बट अब एक चीज और है धीरज. कंक्लूजन बहुत जबरदस्त लिखा, जो मैंने बोला एग्जैक्टली वही लिखा, और ये लिखना है आपको आंसर में. लेकिन इस कंक्लूजन को एक एरो मार्क लगा के बोलो इंट्रोडक्शन में आना चाहिए. ये Okay. कंक्लूजन में क्या आएगा फिर? कंक्लूजन में आएगा कि दीज चेंजेस हाउएवर आर नॉट यूनिवर्सल.
when some of the families still maintain the traditional characteristics, yet other number of families are going towards modernity, creating a situation of anomy within the society, which sometimes results in positive change and yet other times results in faulty socialization. लिख लेना, थोड़ा फास्ट हो गया ये, बट ये कंक्लूजन आपका इंट्रो में आना चाहिए. परफेक्ट इंट्रोडक्शन फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर? हेलो धीरज, एक और पॉइंट. आपने क्वेश्चन लिखा है डिस्कस द चेंज कॉन्टेम्पररी चेंजेस इन फैमिली, राइट? मैं क्वेश्चन को रिवर्स कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना. इस कॉन्टेम्पररी चेंज की जगह अगर मैं बोलूं डिस्कस द कॉन्टेम्पररी ट्रेंड्स इन फैमिली, तो क्या आंसर होता? सर फिर सिर्फ कंटेम्पररी टाइम के लिखते हैं, ट्रेडिशनल टाइम के नहीं. आई लव यू धीरज, परफेक्ट. ये होता है किसी भी चीज को पकड़ लेना. तो गुड, अब इसमें नहीं भटकोगे आप. ठीक है धीरज, एनीथिंग एल्स? नो सर. Perfect. सर बस वन थिंग हाँ. सर, प्लूरलिज्म के फीचर्स में रिफ्लेक्सिव कैसे होते हैं? प्लूरलिज्म वो आंसर लिखा था उसमें बस रिफ्लेक्सिविटी जो एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने डिस्कस किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम टालकड पार्सन्स टू एंथनी गिडन्स. ठीक है, जीएच मीड एंड अदर कम्स इन बिटवीन. रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है व्हेन वन इवैल्यूएट्स द प्रपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू फैक्ट्स एंड देन टेक्स द डिसीजन. कहने का मतलब एंथनी गिडन्स ने बहुत बढ़िया से रिफ्लेक्सिविटी बताई कि किस तरीके से आप जो नई चीजें हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी जो एक्शंस है उनको कांस्टेंट इवैल्यूएट करते जाओगे और उसके हिसाब से चेंज होता जाएगा. तो टेक्निकली रिफ्लेक्सिविटी मानी जाती है रैशनल होना, जहां पे कोई भी आंख मूंद के डिसीजन नहीं लिया जाएगा, हर चीज को परखा जाएगा, समझा जाएगा और उसके बाद में डिसीजंस लिया जाएगा. सो इसके लिए रैशनैलिटी इक्वेट की जाती है. तो हमने वर्ड रिफ्लेक्सिविटी इसलिए यूज किया ताकि थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल प्रपोजिशन इंट्रोड्यूस किया जा सके. और बिना रैशनैलिटी के सोसाइटी कभी प्लूरल नहीं हो सकती. क्यों? प्लूरल होने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझना पड़ेगा चीज को. इसलिए विदाउट रैशनैलिटी ए प्लूरलिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट और अ सोसाइटी कैन नॉट बी ब्रांडेड एज प्लूरलिस्ट. And further, if a society is not pluralist, a society cannot be considered as secular. तो reflexivity was used only in the context of rationality, जो आपका क्वेश्चन था धीरज. ठीक है? Thank you. Next, guys. Sir, am I audible? You're audible. Sir, Jasleen this side. हाँ बताओ जसलीन. सर मेरे में इधर नेटवर्क की दिक्कत रहती है, अगर फिर से कट गया तो प्लीज मुझे अनम्यूट कर देना. ठीक है, आप जल्दी जल्दी पूछो ना, फटाफट जल्दी जल्दी से पूछ लो. सर कुछ 2-3 डाउट है सर. एक जगह पर ना लाइन में एंड में लिखा था कंसेप्ट ऑफ वेबर्स नेबरहुड रिलेशनशिप. अच्छा, नेबरहुड रिलेशनशिप. हाँ, मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट था नेबरहुड रिलेशनशिप. इसको बहुत जगह यूज करता हूं मैं नॉर्मली, जैसे स्लम्स, पॉवर्टी, डेप्रीवेशन एंड उन सारी चीजों में. नेबरहुड का रिलेशनशिप में मैक्स वेबर स्पेसिफिकली विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पुअर में बात करता है. मतलब गरीब लोगों के पास में उनके हिसाब से होता है देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड रिलेशनशिप प्रेजेंट अमॉन्ग द वर्किंग क्लास. ठीक है, अब वो नेबरहुड रिलेशनशिप होती क्या है? मैक्स वेबर सेज दैट द पुअर लैक्स इकोनॉमिक कैपिटल. इनके पास पैसा तो नहीं है भाई, लेकिन इन पुअर के पास में हैव a social capital. They have contacts. And because of this contacts, they largely develop a neighborhood relationship concepts where they largely come to rescue of each other when the need arises. इस टर्म को बोलते हैं neighborhood relationships. Strong bonding with their fellow people, which largely leads to a supporting hand during the time of crisis. Okay, sir. Sir, in middle class or lower class? अरे लोअर क्लास, पुअर की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली. आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो मिडिल क्लास में, लेकिन करना मत. मिडिल क्लास में नेबरहुड रिलेशनशिप नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोअर मिडिल क्लास में होगा. वेबर नाम लिखा है तो पुअर याद रखना. Okay, sir. हाँ, And sir, my other doubt is changes in family में जो हमने points बनाए थे उसमें था change in function. तो हमने ऐसे किया, एक बोल रहे हैं reduced, एक share not reduced और तीसरे not reduced है. नहीं एक सेकंड एक बार क्या चीज, टॉपिक क्या था? फंक्शंस ऑफ फैमिली. हाँ जी, change in functions of family. ओके, सर उधर फैमिली के फंक्शन रिड्यूस हुए हैं.
उसमें आपने एक थिंकर दिया था डेनिस। ओके तो सर वो डेनिस की स्टेटमेंट को यहाँ पर यूज कैसे करना वो समझ नहीं आ रहा था कि उधर देखो, आपने ये स्टेटमेंट दी बता, थी नहीं, एक फैमिली द गॉट इट प्लेस। गॉट इट। जो डेनिस साहब है उनका एक थॉट प्रोसेस ये था, वो कोई फैमिली के फंक्शन रिड्यूस नहीं बोल रहे, हमने यूज किया डेनिस को। क्या बोलते हैं ये कि फैमिली एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे लोगों को अपने फर्स्ट नाम से जाना जाता है। दैट द फैमिली इज द ओनली प्लेस वेयर द पीपल आर नोन बाय देयर फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम मतलब समझ गए ना आप, यहाँ पे प्यार का नाम, फर्स्ट नेम। तो हमने इसको रिड्यूस में क्यों लगाया है कि हम देखते हैं कि आज फैमिली जो है इमोशनल एस्पेक्ट ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, जो स्पेशलाइजेशन टलकड़ पर्सन की थी, बाकी फंक्शंस पे उसका उतना बड़ा अधिकार या डोमिनेशन नहीं है। अब समझ में आया? यस सर। ओके। और इधर भी इरावती कर्वे का भी स्टेटमेंट था फैमिली परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मैरिज। तो Right. इधर हम ये समझेंगे कि ये सिर्फ यही डिसाइड करते कौन किससे मैरी करेगा। right कि family has the functions of family have not yet reduced to only emotional aspects, rather than there are multiple functions performed by the family. We see Andre Bethele says political functions, Iravati Karve talks about marriage functions, JP Mudrock talks about different types of economic and other functions. वो add करना कोई भी scholar, not only Karve, you can add Andre Bethele as well here. ओके सर। एंड इधर सर एंड्रे बेटले का जो पॉलिटिकल फंक्शन वाला उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दी उन्होंने कि कैसे वो हाँ, यस वो एंड्रे बेथले सेज के फैमिली के बेसिस के ऊपर आपका इलेक्शन, सॉरी, अकॉर्डिंग टू एंड्रे बेथले द फैमिली प्लेज अ पॉलिटिकल फंक्शंस एज इट इज द फैमिली बैकग्राउंड विच इज मोर इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स। और ये अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर बहुत अच्छे से दिखाई देता है कि आज हमारी फैमिली के हिसाब से हमारा शायद इलेक्शन का पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है। ओके सर। के और जब आगे जाके हम देखेंगे, इनकी एक किताब है क्लास स्टेटस एंड पावर, उसके अंदर बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि कैसे ये मल्टीपल फैक्टर्स, कास्ट, फैमिली, विलेज इन्फ्लुएंस करते हैं पावर को। ओके सर। एंड सर अगला मेरा है जो आज आपने बोला था सोशियोलॉजी ऑफ ऑटोमेशन। अच्छा, तो सर वो डिस्कस कर लें। हाँ कर लेते हैं, बताओ। सर उसमें अभी तक तो मुझे लाइक जो ये 10-15 मिनट थे थोड़ा सा स्ट्राइक किया। एक तो कार्ल मार्क्स का आया कि जो लिविंग लेबर डेड लेबर में कन्वर्ट हो रहा है तो एलिनेशन बढ़ेगी। सेकंड फेटिशिज्म कि सब कुछ टेक्नोलॉजी कंट्रोल। एलिनेशन लिख दिया, फेटिशिज्म हटाओ, एक ही लिखो, एक थिंकर एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। और सर पता नहीं ये सही है कि नहीं, इमाइल दरखाइन में जो मोरल डेंसिटी थी कि इससे जो इंटरेक्शंस कम हो जाएंगे लोगों के बीच में, क्योंकि सब कुछ तो अभी हाँ। टेक्नोलॉजी कर रही है। मॉरल इमाइल डरकाई मत यूज करना, मॉरल डेंसिटी यूज करना, जो मॉडर्न सोसाइटी में बढ़नी चाहिए टेक्नोलॉजी से कम होती चली गई। तो आप ध्यान से सुनो, इसको पुट अप कर दे रहा हूं। द डरखाइम्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरल डेंसिटी व्हिच रेफर्स टू द राइज ऑफ इंटरेक्शंस इन द मॉडर्न सोसाइटी बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी, इट इज ऑफन सीन दैट विद द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एंड विथ yet other maturity of technology through automation and artificial intelligence, the moral density would increase in the society, but this moral density's meaning has to be changed, where the interactions would here mean interactions of humans with technology, not humans with humans. समझ में आया? यस ओके सर। और एक सर इसमें मैंने रीड कर सोचा था कि ये बोलेंगे क्रिएटिविटी कम हो रही है इसके कारण। अरे यस, 100% मिडिल क्लास, सॉरी, एक स्टेटमेंट है जहां पे ये बोला जाता है कि मिडिल क्लास हैव बिकम्स चीयरफुल रोबोट्स। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये C.W. मिल्स का स्टेटमेंट है कि आज हम चीयरफुल रोबोट्स बन चुके हैं, हमें टेक्नोलॉजी ड्राइव कर रही है। वी हैव बिकम द टूल्स इन द हैंड्स ऑफ आवर ओन टूल्स। ओके सर। एंड सर एक मेरा क्वेश्चन है, आई वाज राइटिंग अ क्वेश्चन, उधर कुछ ऐसे था कि अरे एक सेकंड, जसलीन, वेट अ सेकंड। ऑटोमेशन के अलग का क्वेश्चन है या उसी से रिलेटेड है ये? नहीं सॉरी सर, आई थॉट दिस इज कंप्लीट। दिस इज कंप्लीट। मेरे सामने ये आंसर लिख के दोगे, मैं 10 में से 2.5 मार्क भी नहीं दूंगा। क्यों? बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स ये आंसर नहीं लिखेंगे। ये क्या बचकानी चीजें चल रही है? अच्छी है, कंटेंट बहुत अच्छे से अप्लाई किया मैंने, को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। अरे एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए ऑटोमेशन का आंसर। आज वाला पार्ट यूज नहीं करूंगा, जो क्लास में डिस्कस किया है वो आपको ऑलरेडी पता है। अब किस तरीके से हमें यूज कर सकते हैं डेवलपमेंट डिपेंडेंसी का, वेलेस्टीन का कॉन्सेप्ट। थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। कल सोशियोलॉजी ऑफ लिव इन रिलेशनशिप की थी, आज सोशियोलॉजी ऑफ ऑटोमेशन कर लेते हैं।
लेकिन तुम लोगों की गलत बात है, ये कोई लिखता है नहीं आंसर, सीधा डिस्कशन। वो सर आपने टॉपिक ही आज दिया तो टाइम नहीं मिला था इसको लिखने के लिए। कोई बात नहीं है। ऑटोमेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आज तक ह्यूमंस जो हैं वो टेक्नोलॉजी से किस तरीके से डिफरेंशिएट किए गए थे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉग्निटिव कैपेसिटीज। राइट जसलीन? हम सोच सकते थे, हम फील कर सकते थे, ये सारी चीजें थी जो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती थी, मशीन्स नहीं कर सकती थी। सबको ध्यान से सुनना, ये सोशियोलॉजी ऑफ ऑटोमेशन काम आएगा और हो सकता है इसी साल काम आ जाए, आपको नहीं एटलीस्ट आ जाए क्वेश्चन। कॉग्निटिव कैपेसिटी के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता था फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू ह्यूमंस वर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम टेक्नोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉग्निटिव स्किल्स, बट इन कंटेम्पररी टाइम विद द राइज ऑफ ऑटोमेशन, स्पेशली रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, where the technological revolutions have combined up with the biotechnological revolutions, we often see that the differentiation is no more tenable today. Can I say that? Yes sir. For example, गूगल के या बहुत सारे कंपनीज के बॉट्स ने ह्यूमन को चेस में हरा दिया, और ह्यूमन की सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटी थी टू बी ए क्रिएटिव वन, और क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा चेस में टेस्ट की जा सकती है, और चेस में भी आज मशीन ने ह्यूमंस को बीट कर दिया है, indicating that the creativity and the emotional aspects are no more today the monopolization or monopoly of humans, as the technology have become so intelligent that it can today largely overpower humans because of their economic sensibilities. पहला पॉइंट क्लियर? Yes sir. आगे चलते हैं नेक्स्ट लेवल। ये रिकॉर्डेड सेशन से लिख के रखना सारी चीजें, बड़ा सही सा सोशियोलॉजी होगा। आगे चलते हैं। ऑटोमेशन के अंदर एक और चीज देखी जाती है, हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं, अब वो बेसिक वाला पार्ट नहीं जाऊंगा, वर्क ड्रेजरी रिड्यूस हो जाए, वो सब चीजें आप लिख सकते हो इधर उधर, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज सीन इन द ऑटोमेशन इज दिस, कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस है ना बड़ी 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 स्लो है। मतलब ये जो कल्चरल लैग था, याद है? Yes sir. ये जो कल्चरल लैग है, जो थियरी दी थी आपके ऑक्सफोर्ड स्पेंगलर ने, राइट जसलीन? Ogban sir. हाँ, Ogban sir. ऑगबन, परफेक्ट। ऑगबन ने कल्चरल लैग की जो थियरी दी थी, क्या बोला ऑगबन ने? लैग होती है एक, आपको लैग पता है, मैं लैग पे डिस्कस नहीं करूंगा, उसको यूज करते हैं। The societies, the human societies have always been slow to change. Although the technology and materialistic aspects changed at a faster pace, but the thought and the ideological process remained utter slow. In contemporary time, we do see that with the rise of automation, or for that artificial intelligence, the process of the change can be fastened and the cultural lag in society can be reduced. कैसे? Because the biggest advantage of automation or automative technology over human is this, that the technology's best possible point is updatability and calculability. कह सकता हूं? समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं है। टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ह्यूमंस को डिफीट करता है वो है कि एक सेकंड के अंदर अपडेट कर सकते हो आप। Yes sir. चिट्टी जो रोबोट था, एक चिप निकाली, दूसरी चिप डाली तो चिट्टी एग्रेसिव हो गया, वो चिप निकाली दूसरी डाली तो चिट्टी जो है बड़ा सबलाइम हो गया। क्या किया? एक झटके में चेंज हो गई सोसाइटी। ह्यूमंस को चेंज करने में जमाना लग जाता है। So one important silver lining with the rise of technology in the modern time is this, that the very technology can also help us in reducing the cultural lag present in the society, as the advantage of updatability and calculability is so precise in technology which the humans can never compete with. Second point clear है sociological? Yes sir. सर लेकिन इसमें जो सोशियोलॉजी में तो हम ह्यूमन बींग्स की सोशल रियलिटी को स्टडी करते हैं, तो इधर हम रोबोट्स के साथ कैसे करें कि उसका, क्योंकि रोबोट्स के अंदर अभी ऊपर वाले पॉइंट में आपने क्या देखा? ह्यूमन वैल्यूज डेवलप होने लगी ना। ओके सर। समझ में आया? The humans is not made of flesh. Humans are determined on the basis of their emotional intelligence. और जब robots के अंदर वो आ जाएगा तो difference between humanity and robotics would reduce to a greater extent. समझ में आया? Yes. आगे बढ़ते हैं।
और ऑटोमेशन से सोशल, एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करूंगा, उसको खींचेंगे नहीं। और ऑटोमेशन से क्या इंपॉर्टेंस हो रही है, हो ये रहा है कि पॉजिटिव पहले एक लिख देता हूं छोटा सा, कहीं ना कहीं ह्यूमन डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेहतर हो जाएगी, सॉरी डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ये कनेक्ट करना, कैलकुलेट कर सकता है हर प्रिसाइज मूव और बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो एक लॉयर जो है केस लड़ने जब जाएगा तो बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकता है रोबोट के इसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीजें क्या है। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझते हैं। टेक्नोलॉजी, ह्यूमंस, the very automation also largely may lead to deep alienation in the society, ये word use कर रहा हूं, as we often see that the automation in the 19th century the human faced challenge of inequality. In 21st century the humans face the challenge of becoming useless. कैसे? आज हम useless नहीं है उसके लिए लड़ रहे हैं। कैसे? Because we see that in the present time the automation would largely become the decisive force upon which the existence of humans would depend, creating new forms of inequality in some societies and creating new opportunities in yet other society. For example, algorithm based decision making would become important and the humans would have to then depend not on the reviews of humans but depend upon the algorithm set by the social media and the technological world. समझ में आया? यस सर। कि आज मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं, अगर गूगल का एल्गोरिदम मुझे रेकमेंड नहीं करता है तो आप मुझे देखोगे भी नहीं। यस सर। अब ये यहां तक रखते हैं और बहुत डीप सोशलॉजी हो सकती है इसके अंदर, येट अदर डे कभी और पूछना, बट इज द पॉइंट क्लियर? यस सर। और सर इसमें अगर हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना ले कि जैसे आपने बताया ह्यूमन की जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें इमोशंस हैं, तो नो 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 नो, स्ट्रक्चर बनेगा इमैनुअल वेलस्टीन से। ओपन अप एट अ मैक्रो लेवल फर्स्ट, फिर माइक्रो में जाएंगे ह्यूमन के लेवल पे। मैक्रो लेवल पे डेवलपिंग कंट्रीज पे क्या होगा, डेवलप्ड कंट्रीज पे क्या होगा, वो एक्सप्लेन करो, फिर बताओ कि ओवरऑल द इंपैक्ट ऑन ऑल द सोसाइटीज व्हिच वुड बी फेल्ट इज एज फॉलोज। फिर लिखते चले जाओ। अगर याद है मैंने आपको बताया था एक और पॉइंट कि ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी हेल्थ एक्सेस बढ़ा सकती है लेकिन सेम टाइम में वही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बैड हेल्थ के लिए, राइट? भूल गए। अच्छा भूल गए, चलो कोई बात नहीं है। आर्टिफिशियल, ये टेक्नोलॉजी के कारण ही तो कहीं ना कहीं सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स बन रही है ना, उसके कारण हम बेटर हेल्थ तो पा रहे हैं लेकिन वो हेल्थ खराब क्यों हुई इसी टेक्नोलॉजी से। जसलीन थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, आगे कोई डाउट और? ये सर गवर्नेंस का डाउट था आपके, मैं गवर्नेंस के लेक्चर अटेंड करी थी। ये अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर। अरे कहाँ पे तुम? हाँ बताओ। उधर आपने बताया था कि जो आरटीआई फाइल करनी होती है उसके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होती है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस नहीं होती है, डिस्ट्रिक्ट नहीं, मैंने एक एग्जांपल लिया एसपी ऑफिस का। आरटीए ऑफिस तालुक लेवल पे भी हो सकती है। ये सर मतलब उस डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक या जो भी हेड ऑफिस है उधर सब हर किसी इशू को लेकर उधर ही आरटीआई फाइल नो होती नो है? नो 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 नो, हर डिपार्टमेंट का अलग पीआईओ होगा। तो मान लो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये पुलिस डिपार्टमेंट है, ये आईएएस ऑफिसर का अपना एक कलेक्टोरेट है और यहाँ पे एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। इनके ऑफिस के अंदर पीआईओज होंगे, अपने अपने पीआईओज होंगे और इन दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आप जाओगे इनके पास आरटीआई फाइल करोगे, ये आदमी 30 दिन के अंदर रिप्लाई देगा। 48 आवर्स में अगर ह्यूमन राइट का इश्यूज है, 30 दिन में नहीं आने से आप एपेलाइट अथॉरिटी में जाओगे, एपेलाइट अथॉरिटी फिर 30 दिन लेगा, फिर जाके सीआईसी या एसआईसी में जाओगे डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट सब्जेक्ट और सेंटर सब्जेक्ट। ये सर इधर मेरा डाउट ये था कि पॉलिटिकल पार्टी पर आरटीआई करनी है तो उसका कौन सा? नहीं वो नहीं पॉसिबल है अभी राइट नाउ, बिकॉज उसके अंदर मैंने आपको कंट्रोवर्सी में बताया था, याद है? पॉलिटिकल पार्टीज कम अंडर आरटीआई और नॉट, अभी तक कोई पुख्ता चीज नहीं है। बिकॉज अगर आपको याद है 2013 के अंदर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने जजमेंट दिया कि पॉलिटिकल पार्टी शुड कम अंडर आरटीआई, ठीक है? उसके बाद में 2015 में इलेक्शन के बाद में इलेक्शन कमीशन ने भी सपोर्ट कर दिया, सीआईसी का डिसीजन माना नहीं गया। 2017 में, आई थिंक 17 या 18 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको बोला कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टी शुड कम अंडर आरटीआई, और फाइनली जाके 2019 के अंदर आरटीआई एक्ट को अमेंड कर दिया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चेंजिंग द सीआईसी। आई थिंक सेक्शन 13 समथिंग अमेंडमेंट हुआ था, इसको चेंज किया गया। तो राइट नाउ इफ यू सी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बेसिस के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज कम अंडर आरटीआई। अब आपको आरटीआई सपोज फाइल करना है तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज को पहले पीआईओज अपॉइंट करने पड़ेंगे। अगर इन्होंने पीआईओज अपॉइंट नहीं किया तो आप आरटीआई फाइल ही नहीं कर सकते हो ना।
यस सर, ओके सर। एंड सर लास्ट एक क्वेश्चन रीड करना था अगर टाइम है अभी तो। नहीं, जब जसलीन बहुत लंबा हो गया आज, प्लीज। Yes, sir. ठीक है, Okay, sir. ठीक है। Thank नेक्स्ट, you, sir. थैंक यू। नेक्स्ट गाइस, गाइस नेक्स्ट। अच्छा कोई धीरेन, बहुत लोग हैं। नेहा, हर्ष, आंचल, अदिति, अंजू, ऋतिक, शिवमजीत, सृष्टि। गाइस जल्दी जल्दी करेंगे। सृष्टि आपका लास्ट में लूंगा, कल भी आपका लिया था मैंने, जल्दी से बताओ। हेलो गाइस, सबको एक साथ अनम्यूट मत करो प्लीज, एक एक करके। कौन है पहले, कौन बोल रहा है? धीरेन। अपना नाम ले लेना गाइस प्लीज, ताकि मैं रिकॉल कर सकूं। धीरेन बताओ। सर एक क्वेश्चन था सर, चैप्टर 5 से, प्रेजेंट अ सोशियोलॉजिकल रिव्यू ऑन द न्यू मिडिल क्लास। यार पेपर 2 हो गया है क्या आपका? नहीं सर, नहीं सर। अभी शायद नहीं कर पाओगे उस क्वेश्चन को यार, न्यू, क्योंकि इंडियन मिडिल क्लास वाला जो है, सोशल क्लासेस इन इंडिया में इंडियन मिडिल क्लास अच्छे से कवर होता है, तो उससे आप ये पेपर 1 वाला पार्ट कर सकते हो, क्योंकि पेपर 1 में मिडिल क्लास है ही नहीं लिखा हुआ। यस सर, यही पूछा था मैं। नहीं, इंडियन मिडिल क्लास के अंदर कवर करेंगे, बहुत डिटेल में कवर करेंगे मिडिल क्लासेस। देयर आर मेनी स्कॉलर्स, मेनी पर्सपेक्टिव्स विद रेस्पेक्ट टू दिस, कितने टाइप्स की मिडिल क्लासेस है, बट पेपर 2 में है, कवर करूंगा, तो आई थिंक यू विल हैव एन आइडिया ऑन दिस। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ। सर हाउ डज जेंडर शेप मेल आइडेंटिटी? हाउ डज जेंडर शेप मेल आइडेंटिटी? आपको याद है मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, पेट्रियार्की, एंटाइटलमेंट एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। यस सर। इसको भूल जाते हैं फिलहाल। पेट्रियार्की एंड एंटाइटलमेंट, आपको याद है मैंने ये बोला था, पेट्रियार्की जो है मेन और वुमेन दोनों के एंटाइटलमेंट डिटरमाइन करती है। करेक्ट सर, करेक्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये वाला पार्ट कैसे डिटरमाइन करती है? मेन की आइडेंटिटी मैस्कुलाइन होगा, हाइपर मैस्कुलाइन होगा, या फिर क्या बोलते हैं ऑल्टरनेटिव मैस्कुलिनिटी होगी। मेन का एजुकेशन का एक्सेस पेट्रियार्की से डिटरमाइन है कि बेटे को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। भैया आर्ट्स नहीं करोगे, तुम जाके साइंस करोगे। मेन की हेल्थ कैसे होती है, मेल चाइल्ड इज यू नो फेड अप फॉर अ लार्जर पीरियड ऑफ टाइम। डायमेंशन वही रहेंगे, लेकिन मेन सेंट्रिक आंसर लिखेंगे। फिर भी अगर ये नहीं समझ में आया तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे और सोसाइटी लेवल पे कैसे मेल आइडेंटिटी शेप होती है। करेक्ट सर। फिर भी ये नहीं समझ में आए तो आपको बताता हूं कि many of the people today are, many of the men are don't want to be patriarch, but they have to be patriarch in order to largely get acceptable in the patriarchal society. करेक्ट सर। वो वाला डायमेंशन अगर आपको याद है, बहुत एक केक वॉक के जैसे आंसर निकल जाएगा। RW Colon and others, yes. तो एक्चुअली क्वेश्चन मतलब कि पीवाईक्यू में 5th चैप्टर में था, इसलिए डाउट आ गया था। अभी आपने वो सही से बताया ना कि अब बाकी चैप्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। कौन सा वाला? अच्छा नहीं यार, चैप्टर वाइज मत जाओ। ये क्या है, कुछ लोग बैठ के क्लासिफाई कर देते हैं, ये इस चैप्टर में, वो उस चैप्टर में, ऐसा नहीं है एक्चुअली। हाँ सर एक और क्वेश्चन है सर। इस क्वेश्चन में सर मतलब कि मेरे को बस टर्म का मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ सर। डिस्कस द नेचर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी विद रेफरेंस टू लिमिट्स ऑफ द वर्किंग डे। नहीं, ये कल भी किसी ने पूछा था। लिमिट्स ऑफ द वर्किंग डे एक थियरी है कार्ल मार्क्स की, ओके कि कैपिटलिज्म से पहले वर्क डे कैसा था, कैपिटलिज्म के बाद में वर्क डे के ऊपर लिमिट कैसे लगाएगी, और कैसे उस वर्क डे लिमिट के अंदर वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन किया गया। अब कई बार मैंने कल भी बताया था कि कल कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक डीप किसी एक थिंकर को उठा के आ जाते हैं, इसको जनरली नहीं लिख सकते हम। आपको फिर भी आज इसका एक थोड़ा सा एसेंस बता दे रहा हूं, बिकॉज ऐसे आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन एक बार आते हैं और उनकी लाइफ लाइन उसी साल की होती है, फिर कभी नहीं पूछे जाते हैं वो, बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द टेक्निकल सिलेबस एज सच। फिर भी आपको बताता हूं, लिमिट्स ऑफ द वर्किंग डे का एक सिंपल जनरल मीनिंग लेके चले, मार्क्स को बाहर निकाल दूं फिलहाल, तो होता है कि क्या लिमिट है एक आदमी को वर्क करने की। ठीक है, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊं तो कैपिटलिज्म से पहले थोड़ा सा मार्क्स बोलते हैं बिफोर कैपिटलिज्म कि ये लिमिट ऑफ वर्क जो था, इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है जो आप प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, और दूसरा होता है आपका लेजर टाइम। आदमी को अप्रोप्रिएट लेजर टाइम की भी जरूरी है ताकि वो प्रोडक्टिव रह सके। समझ में आया? यस सर। कैपिटलिज्म जब आया
तो ये प्रोडक्टिव टाइम के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन लग गई, 8 घंटे करने हैं, 5 घंटे करने हैं, 2 घंटे करने हैं, चलो ये एक इंप्रूवमेंट रहा, स्लेव हमेशा काम कर रहे थे, आज ये चेंज हुआ। एंड बट मार्क्स डिस्कसेस कि ये टेक्निकली काम नहीं आती है, बिकॉज टेक्निकली अ पर्सन इज ऑलवेज रनिंग फॉर द टारगेट्स, ये वर्ड मैं आज यूज कर रहा हूं। अब आगे आते हैं, इन इंडस्ट्रीज के अंदर वी सी देयर इज अ लिमिट ऑफ द वर्क डे विच इज imposed, but with the rise of information technologies, the social organizations of the work in the modern societies have drastically changed. Specifically with the rise of work from home, we often see that there is no particular limit of working day. समझ में आया? यस सर, यस सर। थोड़ा अगर मार्क्स नहीं याद है आपको, फिर भी कहीं थोड़ा बहुत पल्मोनरी सक्सेशन करना पड़े कि ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, तो ऐसे अप्रोच कर सकते हो, बट अगेन नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आएगा नहीं, स्पेसिफिकली मार्क्स का व्यू पॉइंट है ये एक। सर बट इसमें मार्क्स लिखा हुआ नहीं था, तो बेटर कि हम इसको अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मार्क्स नहीं लिखा हुआ, इसलिए आपके पास स्कोप ये है कि आप अपने हिसाब से लिख सकते हो इसे। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि लिमिट ऑफ वर्किंग डे एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो कार्ल मार्क्स ने दिया, तो आपको पहले ये एलॉबरेट तो करना ही पड़ेगा। तो इफ यू गो विथ दिस यू गेट मार्क्स नो डाउट, बट टू गेट द राइट मार्क्स इन दिस क्वेश्चन आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके सर, ओके। कुछ और? डन? नो सर, अभी तो इतना ही था। यस चलो फाइन फाइन, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट। हेलो हेलो हेलो, who's this? हेलो हेलो सर, किसी ने बोला who's this? सर आदिति। अदिति बताओ। सर मुझे दो आंसर्स पढ़ने थे, एक डिसेंट से लेकर एक आंसर कोई सा भी पढ़ लो आप। ओके सर। सर सो पेट्रियार्की लॉ पे सब लोग डिस्कस। वेट अ सेकंड, अदिति आपका वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक कर रहा है, मतलब ऐसे फट रहा है आवाज, तो वो मैं आंसर सुन नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा माइक ज्यादा पास में है क्या? हेलो हेलो, ओके सर। एक बार धीरे धीरे पढ़ते चले जाओ, बच्चा दिखते हैं। जी सर, क्वेश्चन है, डज मॉडर्न सोसाइटी हैज लेड टू फॉल ऑफ डिसेंट सिस्टम, डू यू एग्री? Fall of descent. Do you agree? Okay. Yes, sir. So, descent largely in sociological aspect refers to the transfer of property, and as the contemporary society is driven by materialism and benefits, the descent largely exists even today. There some advocates that due to rise in personal wealth and restrictions imposed by legal statutes have led to fall of descent system today cannot be substantiated empirically at ground level. The formulation of Indian Succession Act and the Hindu Succession Act reflects the dimensions of property issues that emerge between siblings of a family. India follows the culture of joint families that not only lives together but also owns property together, and it is often seen the property issues seeps in. So even though descent emphasizes rule on which property is transferred, as opined by G.S. Goyal, there are considerable disputes over ancestral properties that have led to a breakdown of joint families. Not only money, but descent is also tracked through transfer of cultural property that often moves from generation to generation in form of various rituals or practices or veneration of full Deviya Devta that one often abide by. Descent is often used in sociological studies to understand the societies through the form of descent they follow, like patrilineal, matrilineal, or ambilineal, the nature of culture they possess, and at large, the type of society that existed. Therefore, descent is not only a transfer of economic or cultural property, but the very pattern of descent, though seems hazy in modern society, has still its roots intact and functional. Okay, अदिति फ्लैम्बॉयंट आंसर, बहुत अच्छा लिखा है। बस सिर्फ कंक्लूजन में एक कंक्लूजन में ऐड कर लेना सिर्फ ये, टू फर्दर एनहांस द यूजिबिलिटी, हेंस वेदर द डिसेंट हैज whether descent systems are fallen or still influences
डिपेंड्स अपॉन, हेंस इट कैन, नहीं ऐसे लिखेंगे, हेंस फ्रॉम द अबो इट कैन बी सीन, जो कंटेंट आपने लिखा है, फ्रॉम द अबो इट कैन बी सीन दैट इफ द डेसेंट इज अंडरस्टूड as a mechanism of transferring the property, then there exists a debate in sociology. But however, if the descent is largely understood as a tracing one's origin to its root, then the descent is deeply intact even in modern society. एंथ्रो को भी इंट्रोड्यूस करके कंक्लूज करो, क्योंकि डेसेंट का एक और मीनिंग भी है ना, वो तो हमेशा जिंदा रह ही रहा है. जी ठीक है, हाँ जी सर, थैंक यू सर। thank you Aditi, but a very good written answer. Good, keep it up. Next guys, hello, hello, अंजू. ठीक है, अरे गाइस अपना नाम ले लिया करो यार. सर मैं तो थोड़ा क्वेश्चन सर, ये सोशल चेंज का इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आया सर. सोशल चेंज का इंट्रोडक्शन पार्ट मतलब कौन सा? नहीं सर, इंट्रोडक्शन से कैसे सोशल चेंज आया सर, इसमें समझ में नहीं आया. इंटरेक्शन से, अच्छा. हाँ. एक मिनट, लेट मी ऑफ द टाइमर. इंटरेक्शन से कैसे चेंज आया, इसको मैंने इमाइल डरकहाइम यूज किया था, बट इट्स ओके इफ यू डोंट यूज इमाइल डरकहाइम, जनरली लेके चलते हैं. लेट्स सी व्हेन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, एक चीज समझते हैं. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, सिंपल लेके चलते हैं, टाउन्स एंड सिटीज डेवलप होने लगी, इससे माइग्रेशन आया. अंजू, क्या इस माइग्रेशन से इंटरेक्शन हुआ, चेंज क्या जी सर. हुआ? पक्का? जी. जब ये इंटरेक्शन चेंज हुआ तो क्या इसने फिर सोशल चेंज को प्रोपेल किया, कुछ और बदलाव लाया सोसाइटी के अंदर? एग्जाम्पल, marriage rather than being a union of two people, marriage now became an example of plastic sexuality. Father and son relationship, कैसे? मैं बता रहा हूं कि सोसाइटी के अंदर जो चेंज आता है वो इंटरेक्शन चेंज करता है, एंड द वेरी चेंज इन इंटरेक्शन फर्दर एड्स फ्यूल टू द एग्जिस्टिंग चेंज. फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से सुनना, एक सटीक एग्जाम्पल समझ में आएगा. दिस वॉज द बैकग्राउंड. In the traditional Indian society, the caste-based interaction maintained the authenticity of caste associations. However, in the modern society, when the interaction became much more fluid, it changed the nature of caste structures in society. Can I say that? सर बोल. Hello? हाँ जी सर, जी सर. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सर पोइल वाला पास समझ में नहीं आ रहा. अभी भी नहीं आया? पोइल जो आपने बताया था ना, कास्ट का मॉडर्न. अच्छा चलो एक बार दूसरा एग्जांपल समझ लो, इससे आ जाए शायद. लेट्स अज्यूम ट्राइब है यहाँ पे, ठीक है? जी सर. ट्राइब आइसोलेटेड थे ना अंजू? जी सर. फिर ब्रिटिश आए, ब्रिटिश आने के बाद में हमने देखा ये आइसोलेशन थोड़ी सी ब्रेक कर गई. जब ये आइसोलेशन ब्रेक की तो ट्राइब लार्जर सोसाइटी से इंटरेक्ट करने लगे. जब ट्राइब लार्जर सोसाइटी से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो अब आप आंसर देना, क्या ट्राइब्स के अंदर उनका सोशलाइजेशन पैटर्न, उनका कल्चर, उनकी इकोनॉमिक्स, उनका हेल्थ चेंज हुआ क्या? होगा सर. आप समझ में आ गया व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेक्शन एंड सोशल चेंज? जी सर. और सर स्ट्रक्चर को भी थोड़ा बता दीजिए. किसको किसको? स्ट्रक्चर वाला सर, सोशल स्ट्रक्चर वाला कौन सा? जब सोशल चेंज, जब स्ट्रक्चर चेंज होते हैं तो फिर सोशल चेंज आते होंगे ना सर, उसको भी आप बता दीजिए. नहीं अंजू, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. स्ट्रक्चर मतलब कोई, मतलब कोई नहीं सर, स्ट्रक्चरल पैटर्न जब चेंज होते हैं तो फिर सोशल चेंज आते हैं. हाँ, उसको भी बता दीजिए. अच्छा. अरे ओके, चेंज इन स्ट्रक्चर जब होता है तो वो सोशल चेंज कैसे लाता है? किसके अंदर सोशल चेंज लाएगा? दो लेवल पे ला सकता है, और दूसरे स्ट्रक्चर्स को चेंज कर सकता है, इंडिविजुअल्स की सोच को चेंज कर सकता है. ये स्ट्रक्चरल चेंज. टेक एन एग्जांपल, लॉ आया तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ. कैसे चेंज हुआ?
caste based rules replaced by formal rules and regulation. Can I say legal structure change हुआ? Yes, sir. लीगल स्ट्रक्चर जब चेंज हुआ तो इसने रिलीजन को भी बदला, स्ट्रक्चरल चेंज. Yes, sir. इसी लीगल स्ट्रक्चर ने आपके बिहेवियर, बिलीफ सिस्टम्स, आइडियोलॉजी को भी बदला, बिहेवियरल Yes, चेंज. sir. So we see structural change also largely brings changes. It can sometimes propel changes in yet other structures, increasing its adaptability as highlighted by Parson, and sometimes it can also change the value systems present in a given society. Yes, sir. ठीक है, Sir, अभी समझ गया. चलो कोई बात नहीं है. Thank you, sir. थैंक यू. नेक्स्ट गाइस, नाम ले लेना जो भी है. हेलो हेलो, हाँ, who's this? सुमित. Hello, हाँ, who's this? sir, Shivam ji. शिवम जीत. ओके. Yes, sir. अच्छा discuss करना है. अरे क्वेश्चन बताओ. How do you understand the relationship between patriarchy and social development? How do you understand the relationship between patriarchy and Social development. student suicide? Social development. Social development, sir. अरे आपकी वॉइस सोशल Development. डेवलपमेंट. ओके, सोशल डेवलपमेंट. ठीक है. हाँ बताओ, रीड करना या डाउट है? Sir, read करना. बताओ. Patriarchy as a social system is characterized by the dominance of men in political, economic, and social sphere, and the subordination of women. This system has influenced social development in the various forms. First, gender roles. Patriarchy has a significant role in shaping traditional gender roles. Men being associated with public life, decision making, but women has been associated to private life, caregiving, and this has limited the women opportunity for social development. Second, distribution of resources. Patriarchy has also influenced the distribution of resources within societies. Men typically have more access to and control over economic resources, political and social status. This unequal distribution has reinforced gender inequality and hinders the social development. Third, inequality in terms of property distribution. Historically, favored men एक सेकंड, इनइक्वालिटी इन द क्या डिस्ट्रीब्यूशन? in terms of property distribution. प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ओके. Historical favored men in matter of property rights, inheritance, and family law, which bring the male dominance and female subordination, which hinder the social development. We often see the entitlement to that identity of men and women is strongly influenced by patriarchy, where men start valuing a masculine feature and the women sometimes will start accepting the feminine characteristics. आगे. हेलो. Yes, yes, a conclusion. हाँ, Lastly. Done, sir. ये कंक्लूजन था क्या लास्ट में, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन वाला? Yes, sir. अच्छा, एज फार एज योर कंटेंट इज कंसर्न, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने कहीं पे भी सोशल डेवलपमेंट का मीनिंग नहीं बताया आपने शिवमजीत. Yes. बताना चाहिए. इंट्रोडक्शन में लिखो पेट्रियार्की के साथ. सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट का मीनिंग मैंने सोशल चेंज के चैप्टर में आपको बताया था. इट रेफर्स टू अ प्लान्ड चेंज जो पॉजिटिव होती है, जो प्रोग्रेसिव होती है, राइट? सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? आपको एक सिंपल में पूरा स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं, ध्यान से समझो. सोशल डेवलपमेंट कब होता है? सॉरी, सोशल डेवलपमेंट क्या कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करता है? सोशल डेवलपमेंट का मीनिंग है वेल बीइंग का कॉन्सेप्ट. ये याद रखना हमेशा. वेल बीइंग का क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? हेल्थ, एजुकेशन, सोशल जस्टिस. इस सोशल डेवलपमेंट के औजार क्या होते हैं? एजेंट्स क्या होते हैं? राइट बिलीफ सिस्टम, राइट टेक्नोलॉजी. अब आपको पूछ रहा है कि पैट्रियार्की किस तरीके से सोशल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो आप बताओ. सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू अ प्लान्ड सोशल चेंज विच इज प्रोग्रेसिव एंड लार्जली प्लान्ड इन नेचर. ऑलवेज पॉजिटिव माना जाता है.
The impact of patriarchy can be seen in the factors which bring social development and the very the components of social development which it constitutes. एक point बताओ, patriarchy कैसे health को impact कर रही है, patriarchy कैसे education को या social justice को impact कर रही है, जिसमें आपने जो point लिखे हैं वो perfectly valid हो जाएंगे. ये वाला ऐड करो कि पेट्रियार्की कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल बायसनेस रखने के कारण टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर सकती है, बट दैट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वुड बी मोर मेन सेंट्रिक, एंड एज अ रिजल्ट व्हेन द मेन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी डेवलप्स, द सोशल डेवलपमेंट हैपेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शंस, नॉट यूनिवर्सली द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पीपल. फिर आपका कंटेंट इसको अप्रोप्रिएटली फिट करो. डेवलपमेंट वाला पार्ट आपको डिफाइन करना चाहिए इधर. गॉट इट? ओके गाइज, यार आज बताओ कोई और है क्या? एक और ले रहा हूं. 4:30 का 4:45 हो गया. प्लीज अंडरस्टैंड. कोई और है? हेलो ऋतिक बताओ. ऋतिक क्वेश्चन मत पूछना दोस्त, कुछ और पूछ लो यार. नहीं सर, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछना सर. हाँ सर वैसे सर इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम सर कि मैं आपकी लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ. अच्छा, कर नहीं पा रहा हूँ. मतलब सर जून में वैसे मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए थे, तो उस बीच में सर 1 महीने का डिले हो गया. ओके. उस टाइम सर आप सोशियोलॉजिकल थिंकर्स करा रहे थे. तो सर मैं जब जुलाई में वापस आया तो मैंने सोचा कि स्ट्रैटिफिकेशन से शुरू करें या फिर स्ट्रैटिफिकेशन की लाइव क्लासेस देखूं या फिर सोशियोलॉजिकल थिंकर्स का रिकॉर्डेड देखूं. तो मैंने सर चूज किया कि मैं रिकॉर्डेड देखूंगा, लेकिन थिंकर्स पहले करूंगा. तो सर अभी मैं कंफ्यूजन हुआ कि सर मैं अभी 1 महीने के डिले पे हूँ. एक काम करो ऋतिक, आपको जो सॉल्यूशन बता रहा हूं उसको फॉलो करना. अभी सोशल चेंज वाला चैप्टर तक जो है वो रिकॉर्डेड देखो आप, ठीक है? इसके बाद पेपर 2 स्टार्ट होगा, ठीक है? यस सर. पेपर 2 से लाइव आ जाना. सर पेपर 2 मैं बैच 4 का हूँ सर. मेरा बैच शुरू हुआ था मार्च में. अच्छा, आपका पेपर 2 हो गया है क्या? यस सर. तब फिर क्या दिक्कत है? अब तो खत्म हो गया फिर आपका बैच ही है. यस सर, तो दिक्कत उसमें कोई नहीं है सर. लेकिन सर बस वही आपसे इंटरेक्शन नहीं हो पा रही थी सर. नहीं, अगर देखो एक चीज बता रहा हूं मैं, तुम फिर है ना 15-10 मतलब इस हफ्ते कंटिन्यूअसली लाइव सेशन अटेंड करो यार, ताकि एटलीस्ट कंटिन्यूअसली थोड़ा सा इंटरेक्शन रहेगा, थोड़ा सा वो अप्रोच और डेवलप होने लगे. फिर जाके रिकॉर्डेड तो आपको देखने ही देखने हैं. एक हफ्ता और जब तक सोशल चेंज रहता है, प्लीज अटेंड लाइव. प्लीज मेक श्योर आप लाइव अटेंड करो, ताकि कई बार क्या होता है वो थॉट प्रोसेस और बेटर आ सकता है लाइव के अंदर. 5 लोग डाउट पूछने हैं तो आप समझ सकते हो चीजों को. यस सर. नहीं ऋतिक, डोंट मिस दिस. आप हफ्ते भर और मैनेज करना है, लाइव सेशन करो, उसके बाद कंटिन्यू करना आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे पावर एंड पॉलिटिक्स हो या स्ट्रैटिफिकेशन हो. यस सर. अब सर मेरा स्ट्रैटिफिकेशन खत्म हो गया, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ शुरू करनी थी मेरे को. वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ शुरू करने से पहले मेरे हिसाब से आप सोशल चेंज स्टार्ट कर लो, ताकि एटलीस्ट कहीं ना कहीं आज 2 लेक्चर सोशल चेंज के देख के बैठो. कल छुट्टी है, उसके बाद आप सीधा सीधा ये लाइव अटेंड करो, फिर आप वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ स्टार्ट करना. 3 चैप्टर बचे हैं आपके. यू विल बी इजीली कंप्लीटिंग दैट. डेफिनेटली सर. सर मुझे सर एक और चीज कन्फेस करना है सर. हाँ बताओ. सर मजा आ गया सर मजा आ गया सर पढ़ के. अच्छा चलो, लेकिन एक बात बताओ, तुम एक राइट एग्जांपल हो. एक चीज बताओ मुझे, तुमने पेपर 2 से स्टार्ट की थी, कहीं पे कोई भी दिक्कत आई सोशियोलॉजी को समझने से, चाहे पेपर 2 से ही स्टार्ट किया हो मैंने? नॉट एट ऑल सर. क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर कराएंगे कि नहीं कराएंगे. तुम्हें क्या हर एक पार्ट सिलेबस का कवर कराया मैंने? यस सर. तो मैं भी स्टार्टिंग में कंफ्यूज था, बट प्रॉब्लम कहीं नहीं आई सर. नहीं आएगी यार, अगर आती तो मैं बैच स्टार्ट नहीं करता. यस सर. वो सर मैं समझ गया सर कि आप जितनी सारी बैचेज आ रहे हैं वो आप प्रॉब्लम नहीं होने देते सर. नहीं, कब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो एट द एंड फायदा क्या हुआ पढ़ाने का फिर? यस सर. गॉट इट. चलो मजा आ गया, दैट्स गुड. बाकी लोगों को भी मैं तो यही रहता है कि सर आप बहुत डिटेल में जाते हैं. मतलब आप 4.5 महीने का कोर्स होता है सोशियोलॉजी का, लेकिन वो जाता है क्योंकि सोशो एक ऐसी चीज है ना. आप जैसे ऑटोमेशन डिस्कस करने लगे, सडनली 5 पॉइंट आ गए, सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी आ गया क्वेश्चन तो आप कैपेबल तो रहो यार लिखने का. यस सर. तो थोड़ा डिले होता है. सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है. प्लेजर इज ऑल बीन माइन. बेस्ट ऑफ लक. एक हफ्ते अच्छे से लाइव सेशन अटेंड करो, फिर आराम से आप देखना रिकॉर्डेड. गाइज इसके साथ मैं डाउट सेशन बंद करूंगा. प्लीज बंद इन द सेंस आज के लिए यही है. कल छुट्टी है, परसों आई विल सी यू एट 1 o'clock. थैंक यू सो मच गाइज. प्लीज. अरे यार हाँ हेलो. डाउट नहीं है सर, डिनाइंग ना हूँ सर. मैं बस ये पूछना चाहता था, सर जुलाई बैच में मैंने ज्वाइन किया था. अच्छा, मेरे को कोई टेस्ट सीरीज नहीं दिखी है सर. मैं सपोर्ट को भी कॉल किया पर मेरे को मतलब कि रिस्पांस नहीं हो पाया.
क्या अभी शुरू ही नहीं हुई है जुलाई बैच की टेस्ट सीरीज या फिर मेरे को ही होगी? एक्चुअली धीरेन मुझे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कौन से बैच का कौन सा टेस्ट है, वो एक रिकॉर्ड में रख नहीं पा रहा हूँ। तो आपका बैच कौन से चैप्टर से स्टार्ट हुआ था, मुझे ये बता सकते हो क्या? चैप्टर 5 सर, स्ट्रैटिफिकेशन से। और चैप्टर 5 एक टेस्ट हो चुका है धीरेन आपका? ओके सर, फिर मैं कंफर्म कर लूंगा। एक टेस्ट हो चुका है, उसमें क्या क्या हुआ है? स्ट्रैटिफिकेशन, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ और पावर एंड पॉलिटिक्स, ये तीनों चैप्टर का एक टेस्ट हो चुका है। ओके सर, ओके सर। ठीक है ना, ये एक बार कंफर्म करो। आपको अगर नहीं दिख रही है, पेपर दिखना चाहिए, डिस्कशन भी दिखना चाहिए था उसके अंदर। ओके सर, ओके। ठीक है। एक और सर मतलब कंसर्न ये है हाँ। कि जो हाउस का टाइमिंग है सर, ये यही रहेगा सर? और अरे ये यही इमीडिएटली सेम लिंक इन द सेंस हर डे मैं लिंक भेजा करूंगा यार, उसी में होगा वो अब, क्योंकि उसके अंदर क्या वो इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है फिलहाल। तो जब तक वो थोड़ा सा अपडेट नहीं हो जाए ऐसे ही होगा डाउट सेशन अलग से, लेकिन डेली मैं करने की कोशिश करूंगा ताकि 6-7 घंटे हर हफ्ते डाउट ले लिया जाए। ओके सर, ओके सर। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू, टेक केयर गाइस।